जी ये हमारी बुक है सामने आपके, जो हम जिसके ऊपर हम पढ़ते रहे हैं। बुक आपके पास अब ऑब्वियसली अवेलेबल है, इट इज़ विद यू। हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है जी, कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं हम। केम आउट मेजर्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? जी सर। ओके। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। Current assets are those assets which are expected to be converted into cash within 1 year during normal course of business. उसमें क्या आते हैं? कैश, बैंक, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? दोज पीपल हु ओज अस मनी, यानी दोज पीपल टू whom the goods are sold on credit and they are supposed to make the payment to us. They are trade receivable and they are all current assets because they are supposed to pay us within 1 year. Non-current assets are those assets which are not supposed to be converted into cash or not expected to be converted into cash within 1 year during normal course of business, like building, land, furniture and fixture, machinery, motor vehicle equipment, premises. These are all non-current assets. The purpose behind the scene to purchase these assets is not to resell them. So they are not for the purpose of resale, they are not for the purpose of sale, and they are used for long period of time. They are supposed to be retained in the business. And current liabilities which are supposed to be paid within 1 year, like trade payables, loan, bank overdraft. Bank overdraft का मतलब ये होता है बस कि आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए जितने थे उससे ज्यादा, अब आपने बैंक को पैसे वापस करने हैं, तो दैट विल बिकम योर करंट लाइबिलिटी। वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है आपकी, वो पैसे आपने बैंक को वापस करने होते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के हवाले से। इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड to find the profit and loss of the business, in which we compare the expenses with the income. If income is more than expense, we have profit. If expense is more than income, we have loss. Balance sheet basically shows the financial position of the business. It is also called statement of financial position. It is prepared at the end of the year and we use to write assets and liabilities in the balance sheet. कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर. वी आर बिजनेस, नॉट द ओनर. Owner is the person who supplied the resources of the business, who has invested in the business in the form of capital. So capital may be treated as a liability because business is supposed to be payback, supposed to repay that money along with profit at some stage, maybe at the end of the business. वापस तो करना ही पड़ेगा. फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा. अब हम उससे आगे चल रहे हैं कि रेवेन्यू क्या होता है. रेवेन्यू का मतलब है इनकम. रेवेन्यू का मतलब है इनकम. इनकम ऑफ ए फर्म आइदर बाय सेलिंग ऑफ स्टॉक, चीजें बेचकर जो सेल्स होती हैं वो भी इनकम है, और उसके अलावा अगर अदर इनकम कोई रिसीव होती है जैसे कमीशन इनकम, रेंट इनकम. हम इनकम के लिए सेपरेट अकाउंट यूज करते हैं. इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है एंड प्रॉफिट बेसिकली एट द एंड इंक्रीजेस कैपिटल. कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस, कॉस्ट इनकर्ड इन रनिंग द बिजनेस, cost to operate the business are core expenses like rent expense, commission, lighting and heating, insurance, because they reduce profit and profit decreases capital. So because capital is credit, that's why expenses are debited and they have a separate account also. Drawings क्या होती हैं? Whenever owner withdraw cash from the business for his personal use, that is called drawings, and the entry for drawings are drawings to cash. लेकिन अगर ओनर गुड्स विदड्रॉ कर ले बिजनेस से, यानी कि ओनर बिजनेस से चीजें भी निकलवा सकता है, उसे हम कहते हैं गुड्स ड्राइंग्स, और वो आपकी हमेशा डेबिट होती हैं. अस्सलाम वालेकुम. ड्राइंग टू परचेज एंट्री होती है जी. ठीक है जी, ड्राइंग टू परचेज की एंट्री होती है. नेक्स्ट हमारा आता है जी टी अकाउंट और लेजर अकाउंट एंड हाउ टू बैलेंस देम. ठीक है जी, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम एंट्रीज के बारे में हाले से बात करेंगे. सबसे पहले आपका है जी स्टार्टेड बिजनेस विद 12,000 इन कैश. You have started business with 12,000 in cash. तो हम इसकी डेबिट क्रेडिट के बारे में दोबारा से रिवाइज करते हैं. Although you have solved the questions which I have given you, but I am just going to repeat it just for you for the sake of understanding again. Started business with 12,000 in cash. So cash is an asset. Asset is increasing. Increase in asset debit. Cash debit होगा. And whenever you are going to invest in the business, capital is going to be credited. क्योंकि capital business में increase कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? Credit हो जाएगा. Paid 11,700 of the opening cash into a bank account for the business. आपने 12,000 में से 11,700 कैश बैंक में जमा करवा दिए, तो बैंक डेबिट हो जाएगा.
बैंक का एसेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आप कैश बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो बैंक का एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, एंड कैश का एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो कैश डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट हो जाएगा। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि हमने ऑफिस फर्नीचर जो उधार पे ख़रीदा है, यानी वी आर सपोज टू पे ऑफिस फर्नीचर, अमाउंट हमने पे बैक करनी है, तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ए नॉन करंट एसेट। सो इंक्रीज हो रहा है नॉन करंट एसेट, वो डेबिट हो जाएगा आपका, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, एंड ड्रीम लिमिटेड इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। वाई? बिकॉज ड्रीम लिमिटेड जो है वो हमारा ट्रेड पेबल है, वी आर येट टू मेक द पेमेंट, सो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा ड्रीम लिमिटेड। फिर ये बैंक नहीं है, बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक है, गलत लिखा हुआ है, ये बॉट ए वैन पेइंग बाय चेक है, तो हम लिखेंगे वैन डेबिट और बैंक क्रेडिट। वैन नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्सन एंड सन्स ऑन क्रेडिट 2300। इक्विपमेंट आपने परचेज किया, इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। पियर्सन एंड सन्स जो है वो लाइबिलिटी है आपकी, लाइबिलिटी जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। फिर रिटर्न ऑफिस फॉल्टी फर्नीचर कॉस्टिंग 120 टू ड्रीम लिमिटेड, हमने फर्नीचर वापस किया है, तो ड्रीम लिमिटेड डेबिट हो जाएंगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, और फर्नीचर का एसेट डिक्रीज कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। देखें ये जो रिटर्न ऑफिस फॉल्टी फर्नीचर की एंट्री है, ये बिल्कुल जो फर्नीचर हमने पहले परचेज किया था उसकी रिवर्स एंट्री अगर आप देखें तो, बिकॉज यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा था और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है हमारी, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग टू ड्रीम लिमिटेड बिकॉज द फर्नीचर हैज बीन रिटर्न बैक टू हिम। ड्रीम लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, और फर्नीचर कैसे डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड सम ऑफ इक्विपमेंट फॉर 200 कैश, इक्विपमेंट आपने बेचा है तो कैश कैसे इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा आपका, और इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1780 बाय चेक, हमने ड्रीम को पेमेंट कर दी है। देखिए ड्रीम लिमिटेड को हमने पेमेंट करनी कितनी थी, 1900 की, 1900 में से 120 की चीज़ें आपने वापस कर दी, ये देखें 1900 में से 120 की चीज़ें वापस कर दी, और बाकी जो पैसे रह गए वो हमने उसको पे कर दिए। पेड द अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1780 बाय चेक, तो ड्रीम लिमिटेड डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड इन कैश, कैश निकलवाया है बैंक से, कैश डेबिट हो जाएगा आपका और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश का एसेट इंक्रीज हो रहा है और बैंक का एसेट जो है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है 130 से। जी यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं मुझे बात। जी सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं एंट्रीज की तरफ। आपने मुझसे कोई डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज जो क्वेश्चन में सॉल्व की हैं आपने, वो आपने एंट्री मुझसे कोई पूछी नहीं, या वो इजीली हो गई आपसे? यस सर, हो गई थी सारी। चलें फिर, रादर देन कि wasting time on entries, I will move towards the next step of accounting cycle, because we have यस। gone through journal. From transaction we used to prepare journal, in journal we prepare entries, and from journal we used to prepare ledgers. और लेजर में हम क्या बनाते हैं, लेजर में हम बनाते हैं टी अकाउंट्स। तो चलें लेजर की तरफ चलते हैं हम। Account is basically prepared for every account like cash, bank, trade, receivable, expenses, capital. Yani T account is prepared separately for each account, and it is in the form of a T. There are two sides of T account, debit and credit side. The name of that side which is being prepared, his name will not come in T account. जिसका account बना रहे होते हैं अब्बास, उसका नाम T account में नहीं आता। T account will be made after entries, obviously entries के बाद ही बनता है। If the account is debited in entries, the amount will come on the debit side with the name of the opposite account and vice versa. And balancing of the account means the difference of two sides written with the name balance carried down on the lesser side. आखिरी दो पॉइंट्स के बारे में जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ अकाउंट आपके सामने बनाता हूँ, दिखाता हूँ बना के आपको। तो कुछ एंट्रीज हम कर लेते हैं पास, ठीक है जी। बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, साथ साथ करता जाता हूँ, अच्छा हो जाएगा। तो गुड सोल्ड फॉर कैश 500, जी गुड सोल्ड फॉर कैश 500, अब्बास की एंट्री होगी
सर कैश हमारा डेबिट होगा और हमारा सेल्स क्रेडिट होगा। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स ग्रेट। कैश हमारा डेबिट हो जाएगा विद 500 और सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी विद 500। जी नेक्स्ट बताएं जी। गुड सोल्ड फॉर सॉरी गुड सोल्ड फॉर कैश कह रहा हूँ। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 1000। सर कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी फर्नीचर का नाम आएगा क्योंकि गुड्स जब होती हैं तब परचेज सेल्स वगैरह आती हैं। जब कोई नॉन करंट एसेट सेल करते हैं तो उसका हम नाम यूज करते हैं। यू आर राइट। तो ये 1000 की अमाउंट आ जाएगी जी आपकी। इन कैश जी, रेंट पेड इन कैश। जी सर आवाज नहीं आई थी। रेंट पेड इन कैश 200 जी जी सही। होगी। 200। रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश कैसे जी डिक्रीज कैश क्रेडिट हो जाएगा। चलें कैश कम अब हो। जी। रिसीव्ड कमीशन इन कैश 500 जी। कमीशन इन कैश, कैश डेबिट हो जाएगा यस और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। यू आर राइट। कमीशन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कमीशन हमारी क्या है, इनकम है। इनकम जो है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है। राइट, कैश टू कमीशन। नेक्स्ट करते हैं जी एंट्री हम। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए 1000। सर तो परचेसेस हमारे डेबिट हो जाएंगे यस, और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए 1000। सर क्रेडिट वाला तो बैंक नहीं होता। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे हमने चीजें खरीदी हैं। जी क्रेडिट सर। का मतलब होता है उधार पे खरीदी हैं, ऑन टाइम, ऑन अकाउंट। जी इस सब का मतलब क्रेडिट पे होता है। तो उधार पे जब चीजें खरीदते हैं तो आपका ट्रेड पेबल क्रेडिट होगा, पंजाब। लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। उस बंदे का जी नाम क्रेडिट होगा ए का, क्योंकि उसको हमने पैसे अभी देने हैं। ठीक है। राइट, हाँ जी जी। चलें, कैश पेड टू ए 200। ए हमारा लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट डेबिट और डिक्रीज हो रही, कैश लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हो रही, क्रेडिट। लायबिलिटी डिक्रीज हो सॉरी रही। सर और जी कैश ठीक हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट। है। जी नेक्स्ट चलते हैं जी। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी 500। सर सेल्स हमारी क्रेडिटेड होंगी जी और बी हमारा डेबिट हो जाएगा। यस, वेरी गुड। थोड़ा सा उधार वाली ट्रांजैक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आई हल्की सी, लेकिन आप चलो ओवरकम कर गए हो। आगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी 500। सर कैश कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और बी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी अब मुझे बताओ बी क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेन करो। सर हमें वो पे कर रहे हैं ना तो हमारी लाइबिलिटी वो हाँ, इन नॉट लायबिलिटी, बी वॉज अवर ट्रेड रिसीवेबल। जी उसने हमें अभी देने थे। हाँ तो वी वर सपोज टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम हिम। तो अब लाभ क्या हो रहा है यस हमारा फिर, बी क्रेडिट क्यों हो रहा है। सर उसने हमें ताकि देने थे ना। हाँ, सर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल तो डेबिट भी हो रहा है, बी डेबिट नहीं हो रहा पहली एंट्री में, बी डेबिट भी हो रहा है एक दफा 500 से, क्रेडिट भी हो रहा है। जी सर। तो बताएं फिर। बी वॉज अवर ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो हमारा एसेट होता है। तो जब बी जी डेबिट हो रहा है तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज डेबिटेड। और जब बी क्रेडिट हो रहा है तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, व्हाई, बिकॉज ही इज नो मोर माय ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि उसने हमें पैसे अदा कर दिए हैं। गॉट इट। ठीक है सर। चलें अब हम बनाते हैं जी
सबसे पहले टी अकाउंट्स का मैंने बताया था, टी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी एंड टी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिंगल अकाउंट सेपरेटली। यानी कि टी अकाउंट कैश का अलग बनेगा, कैश का टी अकाउंट अलग बनेगा, अलग बनेगा अगर बैंक अकाउंट इफेक्ट होता है इसमें, सेल्स का अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, रेंट का अलग बनेगा, कमीशन का अलग बनेगा, परचेजेस का अलग बनेगा, ए और बी का अलग अलग बनेगा। टी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नॉट बाय with two sides obviously, but it is prepared for every single account। और जिसका अकाउंट हम बना रहे होते हैं ना, उसका नाम टी अकाउंट में नहीं आता। यानी अगर कैश का अकाउंट आप बना रहे हैं तो कैश का नाम जो है वो कैश के टी अकाउंट में नहीं आएगा। It has two sides. This is form of a T account. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. तो हम डॉलर के साइन डाल लेते हैं ताकि हम इसको प्रिपेयर कर सकें। Now what I am going to do, अब्बास मुझे देखना है कि पहली एंट्री में मुझे बताएं कि कैश इफेक्ट हो रहा है। Is there any cash in the first entry? यस सर, कैश है। तो कैश जो है वो बस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है सर। डेबिट हो रहा है, तो आई विल राइट द अमाउंट ऑन द डेबिट साइड लेफ्ट साइड 500, but opposite to this the name will come of the opposite side। यानी 500 के सामने मैं नाम किसका लिखूंगा? ऑपोजिट साइड, सेल्स का। यस, नाम आ जाएगा आपका सेल्स का। इसी तरह मैं देखता हूँ नेक्स्ट एंट्री में कैश है जी, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है बेटा? 1000। So I will write 1000 on the debit side, but name will come of the opposite side, which is furniture। अब इसको जरा समझते हैं कि ये कहता क्या है। ये कहता है कि सेल्स डेबिट हो रहा है और कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स, फर्नीचर डेबिट हो रहा है विद रेफरेंस टू सेल्स और बिकॉज ऑफ फर्नीचर, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स और बिकॉज ऑफ फर्नीचर। फिर देखें थर्ड एंट्री में कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 200 से। नाम किसका आ जाएगा ऑपोजिट सामने उसके? रेंट आ जाएगा। क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेंट, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रेंट की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कैश है, कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 500 से। आई विल ओनली लुक फॉर कैश बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट ओनली, सो आई एम कंसीडरिंग कैश ओनली। तो कैश डेबिट हो रहा है 500 से और नाम किसका आ जाएगा? कमीशन का। कमीशन का। फिर कैश नेक्स्ट एंट्री में कैश है, इस एंट्री में नहीं सर, कैश नहीं है इसमें। हाँ, तो ये कैश में कैश अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगी, ये परचेज अकाउंट को इफेक्ट करेगी, ये ए को इफेक्ट करेगी, लेकिन कैश को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट एंट्री में कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 200 से। और किसकी वजह से? ए की वजह से, ए का नाम आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एंट्री में कैश है, नहीं है। फिर कैश डेबिट हो रहा है 500 से बी की वजह से, मैं लिख दूंगा 500। उसके सामने ऑपोजिट साइड पे नाम आएगा ऑपोजिट साइड का, जो कि आएगा बी का। नाउ आई हैव टू बैलेंस द टी अकाउंट। देखिए टी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी अकाउंट लाइक कैश, बैंक, ट्रेड, रिसीवेबल, एक्सपेंसेस, कैपिटल। देयर आर टू साइड्स ऑफ टी अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। The name of the account which is being prepared, its name will not come in T account. T account will be made after entries. If the account is debited, in entries that amount will come on the debit side with the name of the opposite account and vice versa. Balancing of the account means the difference of the two sides written with the name balance carried down on the lesser side। यानी कि हमने दोनों साइड्स को क्या करना है? बराबर करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो साइड भी आपकी बड़ी होगी उसका टोटल लिखेंगे दोनों तरफ। I will write the total of the heavier side on both sides and the difference of the two sides will be written on the lesser side with the name balance carried down. So I'll go for the total of the two sides. Debit side is heavier, so let's go for the total. 1000 plus 500, 1500. 1500 plus 1000, it will become 2500. The credit side will also be 2500. 2500 minus 400, I will get this will be written on the lesser side and the amount is basically 2100 with the name balance carried down। ये वो बैलेंस कैश का निकल आया है जो हम आगे लेके जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा
किस नाम से? इसी 2100 की अमाउंट से। देखें, हमने दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस किया और छोटी वाली साइड पर मैंने बैलेंस कैरी डाउन के नाम से डिफरेंस जो दोनों साइड्स का था वो लिख दिया टू मेक द टू साइड्स इक्वल। अब दोनों साइड्स बराबर आ गई 2500 और आपका बैलेंस आ गया 2100। ये बैलेंस ये शो कर रहा है असल में अब आज डेबिट साइड पर मेरा कैश जो है वो इंक्रीज कर रहा है और क्रेडिट साइड पर मेरा Yes, कैश sir. डिक्रीज कर रहा है। Decrease कर रहा है। तो मेरे पास 2500 से कैश बढ़ा है और 400 से कैश मेरा कम हुआ है। इसका मतलब है मेरे तो पास इस वक्त 2100 कैश रही है। 2100 का कैश अभी अवेलेबल है जो मैं अगले साल यूज कर सकता हूँ। Yes. अब सवाल ये है कि मैंने बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिखा है और आगे ब्रॉड डाउन यहाँ पे लिखा है। मुझे ये बताएं साइड कौन सी बड़ी थी? डेबिट साइड बड़ी थी या क्रेडिट साइड बड़ी थी? डेबिट साइड बड़ी थी। डेबिट साइड बड़ी थी। तो डेबिट साइड बड़ी थी, मैंने बराबर करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखा है, लेकिन ये कैरी डाउन बैलेंस है डेबिट बैलेंस ही, इसीलिए अगले साल ये डेबिट साइड पर ही लिखा जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस होता है। जी ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस जिस साइड पे लिखे होते हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस होता है। क्यों सर? क्योंकि वो बराबर करने के लिए लिखे हैं, डेबिट साइड हमारी बड़ी है। तो ये हमने इस तरह बनाया है कैश का अकाउंट। अब हम बनाते हैं किसका अकाउंट? ए का अकाउंट हम बनाते हैं, क्योंकि सबका बनाना है ना, आपने सबका अकाउंट बनाना है आपने बारी बारी, क्योंकि टी अकाउंट में आपको सबके अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो हम ए का अकाउंट जो है वो बनाते हैं। इधर आ जाएगा जी डॉलर का साइन, इधर भी आ जाएगा डॉलर का साइन। देखिए ए हमारा जो है पहली एंट्री में ए नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ए को देखना है। अगली एंट्री में ए है, ए हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है इसमें। तो क्रेडिट हो रहा है कितने से जी? 1000 से। और किसकी वजह से हो रहा है जी? नाम आ जाएगा परचेजेस की वजह से। फिर ए हमारा डेबिट हो रहा है कितने से? 200 से डेबिट हो रहा है और कैश आ जाएगा 200 से डेबिट हो रहा है और उसके सामने नाम आ जाएगा किसका? कैश का। बस, और तो कोई एंट्रीज की है नहीं, और तो इसको हम कर लेते हैं टोटल। ये टोटल आपका 1000 हम लिख लेते हैं। टोटल हमने ए से पैसे लेने हैं 1000 एक्चुअली, उसने उसमें से हमें 200 पे कर दिए हैं। जब मैं बैलेंस करूंगा इस साइड को तो क्रेडिट साइड बढ़ी है -200, तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 800। डेबिट साइड ये पे 800 इस नाम से आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, जो शो कर रहा है कि पैसे मैंने अभी लेने हैं उससे, और देने हैं उसको, सॉरी। और ये ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाएगा आपका, ये आपका पेबल है कि 800 आपने अभी ए को पे करने हैं, और पेबल आपको पता है लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। वैसे भी क्रेडिट साइड बड़ी थी। ठीक है जी। जी। अब हम बनाते हैं इसके बाद किसका अकाउंट जी? बी का अकाउंट। देखते हैं जी। जी, तो बी अकाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एंट्रीज में बी कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद दोज एंट्रीज इन विच बी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो बी हमारा यहाँ पे देखें डेबिट हो रहा है 500 से सेल्स की वजह से। तो मैं डॉलर के साइन जरा डाल लूँ पहले, क्योंकि ये भी आपको पता ज़रूरी होते हैं। तो बी डेबिट हो रहा है 500 से, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। फिर बी जो है वो क्रेडिट हो रहा है 500 से 500, किसकी वजह से? कैश की वजह से। ओहो, तो आप देखें दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। यस, दोनों साइड इक्वल है। इसमें तो बैलेंस कैरी डाउन हो ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन तो दोनों साइड का डिफरेंस होता है, देयर इज नो डिफरेंस। तो आई विल राइट द टोटल ऑन बोथ साइड्स ऑब्वियसली, बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल 500 एंड 500, और बैलेंस कैरी डाउन इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं कोई। Balance carried down is the difference of the two sides, which is written with the name balance carried down.
There is no difference. I write anything in the balance carried down. अब हम बनाते हैं किसका अकाउंट जी? सेल्स का अकाउंट. Account T account is prepared for every single account. T account is prepared after entries. क्योंकि entries के बाद बनाए जाते हैं. T account has two sides, debit side and credit side. जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम T account में नहीं आता. And the account which is affected, अगर वो हमारा if it is going to be credited as it is sales credit है पहली entry में, तो I will write the amount on the credit side 500 with the name of the opposite side which is cash. Debit cash. जी. फिर नेक्स्ट एंट्री में जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा सेल्स, नेक्स्ट एंट्री में सेल्स नहीं है और नेक्स्ट एंट्री में सेल्स आ रहा है बी को जो आप चीजें बेच रहे हैं 500 का मजीद फिर से क्रेडिट हो गया. नाम किसका आ जाएगा? बी का. बी का अपोजिट साइड का नाम आना है ना. बस और कोई एंट्री तो सेल्स की है नहीं. आई विल गो फॉर द टोटल 1000. क्योंकि डेबिट साइड हमारी 0 है तो क्रेडिट साइड 1000 टोटल. और बिकॉज आई विल राइट द टोटल ऑफ द हैवियर साइड ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा. 1000 माइनस 0 करेंगे आप 1000 ही आपका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन. आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर आप गौर करें तो जितने भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके सामने आ रहे हैं, देखें सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, परचेजेस का डेबिट बैलेंस है, ए का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि वो लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है जी. कैश का देखिए डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि वो एसेट होता है. तो इस तरह से सारे बैलेंस हमारे आ रहे हैं. अब हम बनाते हैं किसका अकाउंट? सेल्स का हमने बना लिया है, तो हम बनाते हैं किसका? फर्नीचर का. जी फर्नीचर का भी बनना है, रेंट का भी बनना है, परचेजेस का भी बनना है. Account is prepared for every single account. कमीशन का भी बनेगा, सारी बात है. तो देखते हैं कि परचेजेस जो है वो एक ही एंट्री में आ रहा है सिर्फ. यस डेबिट हो रहा है. परचेजेस जो है वो डेबिट हो रहा है हमारा 1000 से. नाम किसका आ जाएगा? मैंने बताया अपोजिट साइड का. नहीं परचेजेस हैं यार, परचेजेस हैं. सॉरी ए, आई एम सॉरी. डेबिट हो रहा है ना ए की वजह से, रेफरेंस टू ए. आगे नेक्स्ट देखते हैं जी. आगे हम अकाउंट किसका बनाएंगे जी? परचेजेस के बाद हम बना लेते हैं किसका? फर्नीचर का. रेंट. अच्छा ठीक है. तो फर्नीचर का अकाउंट हम बनाते हैं. फर्नीचर हमारा जो है वो डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट हो रहा है 1000 से और कैश आ जाएगा कैश की वजह से. कैश. इसका टोटल कर लेंगे हम क्योंकि और कोई एंट्री तो फर्नीचर की है नहीं मेरे ख्याल में. 1000. 1000 इधर आपका आ जाएगा जी कैरिड डाउन बैलेंस 1000 और इधर आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस 1000. अब हमने किसका अकाउंट बनाना है जी? कमीशन का भी बना सकते हैं, रेंट का बना लेते हैं. रेंट अकाउंट बना लेते हैं हम. डेबिट हो रहा है कैश से 200 से बिकॉज ऑफ कैश. जी तो इस तरीके से हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. 200 कैश आ जाएगा.
अब अकाउंट हमारा एक रह गया, इसको टोटल भी करना है हमने, वो है किसका, कमीशन का। क्या हुआ, मिनट आ गया, और ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा इधर रेंट का, 200 क्योंकि 200 ही कैरी डाउन आपका आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन। में भी 200 आ जाएगा। जी, अब हमने बनाना है किसका अकाउंट, एक हमारा रह गया किसका, कमीशन अब का, हमारा तो वो भी हम कमीशन का। जी, तो वो भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी जगह यहाँ पे हम कंट्रोल्ड अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कमीशन क्योंकि हमारी इनकम है, आपको पता है, तो कमीशन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, बिकॉज इट इज़ एन इनकम अकाउंट, तो वो क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस आता है। तो कमीशन इनकम हमारी क्रेडिट हो रही है कितने से, 500 से, और विद कैश रेफरेंस टू कैश और बिकॉज ऑफ कैश भी कह सकते हैं आप। इसका हम टोटल कर लेते हैं। इधर आपका आ जाएगा जी 500 कैरी डाउन, और ब्रॉड डाउन भी 500। टोटल 500 आ जाएगा आपका। इधर भी टोटल आपका 500 आ जाएगा। ब्रॉड डाउन की मेरे पास क्योंकि उस जगह नहीं है, इसलिए जी उसको लिख नहीं सकते, तो आप खुद से उसको अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस साइड पर आप नीचे ब्रॉड डाउन जो है वो आ जाएगा 500 ऑन द क्रेडिट साइड आफ्टर द टोटल, after the total of the both sides. So this is how we used to prepare the TA accounts. I have gone for a simple example in which we have understood the way to prepare TA account. It is not that difficult, it is easy. और आपने अगर लिख लिया तो लिख लें साथ, वरना अगर नहीं लिखा तो फिर इसकी आप जो है वो पिक्चर ले लें। जी सर, पिक्चर ले लें। पिक्चर ले लें ताकि उसमें ऐसे आपको प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा आगे मैं मजीद जाऊंगा, इसलिए आप इसको देख लें ताकि मैं फिर आगे नेक्स्ट थोड़ा चलूंगा। जी जी सर, आप, मैंने लिख लिया है। जी लिख लिया आपने जी। अब हमने क्या बनाना है जी, अब हमने बनाना है इसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, इसका ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मुझे एक मजीद खोलनी है और उस पेंट शॉप पे मैं इसका बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। सर वो कैसे, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपसे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन से बनता है जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर, और लेजर से बनता है फिर आगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इट इज ऑफ बैलेंसेस व्हिच यू हैव prepared in T accounts. It basically shows that total debits are always equal to total credits. It shows the arithmetic accuracy of ledger balances. ये बताता है कि आपने ledger balances जो बनाए हैं वो accurate बनाए हैं नहीं बनाए। It is a list of balances of assets, liabilities, expenses and income which you have prepared in T account. Definitely it has a debit side, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, debit side है, and it has a credit side जो कि नेक्स्ट आगे आपको नजर आ रही है डॉलर के साइन के साथ। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने जो हमने सवाल सॉल्व किया है उसी के ऊपर हमने इसको कंसीडर करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा अकाउंट कौन सा है, कैश का।
कैश का बैलेंस क्या आ रहा है, जो डेबिट बैलेंस 2100 आ रहा है वो मैं लिखूंगा। तो कैश का बैलेंस मेरा आ रहा है 2100 डेबिट। आई विल राइट द नेम कैश अकाउंट ओवर हियर। और मैंने उसका बैलेंस जो निकाला था वो डेबिट था और वो 2100 में लिख दूंगा यहाँ पे। सही It है। shows that the three accounts are prepared correctly. Next अकाउंट मेरा है जी, सपोज कर लेते हैं ए का, और ए का बैलेंस जो हो रहा है वो क्रेडिट आ रहा है कितना, 800। तो मैं लिखूंगा जी ए का नाम आ जाएगा इधर, बैलेंस लिख लूंगा 800 किस साइड पर, राइट क्रेडिट साइड 800। फिर बी का बैलेंस लिख लेते हैं। आई डोंट नो बी का बैलेंस है भी कि नहीं। अगर हम सवाल में देखें, ओ सॉरी अपने टी अकाउंट्स में देखें तो बी का तो बैलेंस है ही नहीं, तो बी नहीं आएगा क्योंकि बी बैलेंस कैरी डाउन कोई नहीं है। उसके बाद सेल्स का बैलेंस है 1000 का, तो बी को हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसका बैलेंस है which is having a credit balance of 1000 को मैं लिख दूंगा वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स के बाद आपका परचेजेस है और उसको मैंने उसका बैलेंस मैंने किया ही नहीं, तो लेट मी बैलेंस इट फर्स्ट। जी 1000 ही आएगा, लेकिन मुझे बैलेंस तो करना था ना, आपने बताया नहीं, यू कुड हैव टोल्ड मी। सर इसको बैलेंस करते हैं 1000 and brought down to 1000। मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा परचेज, ये लिखना पड़ेगा, आ जाएगा 1000 डेबिट साइड पे। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हम किसका बैलेंस लिखते हैं, ओ सॉरी परचेज के बाद आपका आता है जी फर्नीचर का, और फर्नीचर का क्रेडिट बैलेंस है 1000 का। 1000 क्रेडिट साइड पे। बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हम, नेक्स्ट आपका बैलेंस फर्नीचर के बाद आ रहा है जी रेंट का 200 डेबिट है और का 500 क्रेडिट है। रेंट का 200 डेबिट है का 500, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो वाली साइड लेनी है आपने, याद रखिएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखे आपने, वो साइड पे आप उसको लिखेंगे rather than कि आप दूसरी साइड जो है वो यूज करें। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं जी दोनों साइड्स का, क्योंकि टी काउंट तो हमने कंप्लीट कर लिया अपने। डेबिट हो जाएगा 3300। देखिए बेसिकली ट्रायल बैलेंस शोज द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। इट शोज दैट टोटल डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। 300 आ रहा है और ये भी आपका 3300 ही आ रहा है। तो it is a list of balances which you have prepared in T accounts. List of assets, liabilities, expenses, income सारे जो इसमें वो आ जाते हैं, और ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये बराबर होना ही बताता है हमें कि आपने टी अकाउंट्स जो है वो करेक्टली प्रिपेयर किए हैं। बराबर होना ही बताता है आपको कि आपने टी अकाउंट सही बनाए हैं। सही है ना? ठीक है सर। तो ये मैंने आपको आज काफी सारा हमने काम किया है। अब हम थोड़ा सा मैं इसकी थ्योरी की तरफ चलता हूँ। वापस देखें, नरेशन को अभी छोड़ देते हैं हम। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज पेड टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस. It shows that totals of debit ledger balances are equal to the total of credit ledger balances according to dual aspect concept. It is a list of balances of ledger accounts prepared in T accounts form. T accounts form में जो आपने ledger बनाए हैं उनके जो balances हैं उसी को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं और वो आपस में बराबर जो है वो होने चाहिए। So this is how we have completed our accounting cycle. We have completed our accounting cycle कि ट्रांजैक्शन से जनरल बनता है, जनरल से लेजर, लेजर से टी अकाउंट्स, जनरल से टी अकाउंट्स, एंड देन वी यूज्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बनती है हमारी इनकम स्टेटमेंट।
बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस के बाद, जो हम इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे वाले दिन इसको भी हम पढ़ लेंगे। अब आपने जो सवाल मैंने आपको दिए थे जी उसके आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, जरूरत नहीं है, उसके आपने टी अकाउंट्स ठीक है बनाने हैं। ठीक है जो क्वेश्चन आपने जिनकी आपने एंट्रीज पास की उसके आपने टी अकाउंट्स बनाने हैं। और उसमें ठीक अगर आपको कोई है प्रॉब्लम है किसी एंट्री में प्रॉब्लम आ रहा था, मुझसे आप अभी भी पूछ सकते हो ताकि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। नहीं सर सारे हो गए थे। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल में हमने देखा था कि हम शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन से, हमने पढ़ लिया। ट्रांजैक्शन से बनता है जर्नल, उसमें हम एंट्रीज पास करते हैं, हमने पढ़ लिया। जर्नल से बनता है लेजर, लेजर में हम टी अकाउंट बनाते हैं, हमने पढ़ लिया। टी अकाउंट से बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनाना भी हमने सीख लिया। और ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which are finally prepared, which includes income statement and balance sheet. बैलेंस शीट Income statement basically क्या होता है? In the income statement we write the expenses of a particular year and we compare the expenses of a year with the income of the same period to find profit and loss of the business. It has a certain format which we will discuss in our next class on Wednesday at 11. And inshallah we'll be able to do that, complete it. But balance sheet shows the financial position of the business. We write assets and liabilities in the balance sheet, that how many assets and liabilities we have at a particular date. तो ये हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कंप्लीट जो है वो किया है। तो अब ये बुक में से आप पढ़ सकते हैं, आपको मैंने सारा बता दिया है। फिर हम चलेंगे उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की तरफ, which is going to be a technical topic and theoretical topic of our syllabus. But हम will first go for the income statement and balance sheet, फिर उसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अब जो आने आपको सवाल दिए हैं, क्वेश्चंस, वो आपने करने हैं घर में, और उन क्वेश्चंस आपने जो है वो टी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं बनाने हैं। जी। ठीक है, बस एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर I think you find accounting a very interesting subject, I जी believe, यस सर and it is going to be the best subject of your choice in the future, I hope so, because all subjects are interesting actually, but it is the teacher who makes the subject interesting. इंटरेस्टिंग The more you understand the subject, the better it is going to be for you. तो ये बात है। तो इंशाल्लाह ताला आपके सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के अलावा और कौन से हैं? अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स मैथ अच्छा, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और मैथ है। ओके ओके, सही। तो सब्जेक्ट्स तो आपने अच्छे रखे हुए हैं, काफी अच्छे सब्जेक्ट रखे हुए हैं आपने, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सब्जेक्ट्स की। दैट विल हेल्प यू आउट। आप इसमें बिजनेस में भी जा सकते हो, और आप इसमें मैथ्स के थ्रू जो है वो आप और कोई सब्जेक्ट कर सकते हो। हाँ, जी तो सही। चलें, ठीक है जी। ओके our class will be finished at 12:30, but I'll do it as early because you are able to handle the things quickly. So inshallah ta'ala, see you in the next class. If you have any question, you can WhatsApp me anytime. Thank you very much. थैंक Okay, यू Allah Hafiz.